in-house training program, and I think this is the day 5, and the topic for today's session is management of learning in class and learning at home. It is very essential to manage the classroom as well as the learning of students at home also, because if there is lack of self-study, then we cannot achieve our goal as just only feeding the child in the classroom, and that just seems to be the vomiting in the examination, and that doesn't fulfill our goal. So how can we manage between the learning in class and learning at home? So think of the smarter ways to handle learning in classroom and learning at home. That additional way is not so enough nowadays. You have to give the homework to write the questions, one question number 1, question number 2. That will not achieve anything, and that will not the aim of learning for the students or children. So that's why you have to go for learning at home in different ways. थोड़ा अलग करना होगा उसको, होम पर किस तरह की लर्निंग के लिए टास्क देना है, so that they can do and learn at home. That is the learning by doing, experiential learning. Because in classroom it is not so possible to go for learning by doing for each and every topic. कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी कर लेते हैं, लेकिन सारे टॉपिक्स में पॉसिबल नहीं हो पाता है. बट इफ वी गो फॉर लर्निंग एट होम इन द वे ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो आई थिंक स्पेशली इन साइंस वी कैन अचीव मोर. सो लेट अस सी 12 experiences. This is very simple experiences. Everyone has such type of experience, like shopping vegetables, milks. क्लिनिकल एक्सपीरियंस, फीवर रनिंग, नोज सोरिंग कुछ हो रहा है तो उसका कैसा एक्सपीरियंस होता है, एवरीवन सबने देखा होगा. इंटर्नशिप, क्लीनिंग कार, वैक्यूम क्लीनिंग, डस्टिंग, these are the common experiences that we have passed through, and each and every child will also pass through such experiences at home. Prerequisites for the classwork. अब classwork के लिए जब हम जाएंगे तो उसका कुछ प्री प्लानिंग होना चाहिए. तो what type of plan we should do before going to class? So there should be time management. How much time we are going to invest in our classroom session. Planning for the entire group learning objective. है ना, ये नहीं peculiar 2-3 को पढ़ा के निकल गए, बाकी सब तो देखते ही रहेंगे. तो entire ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ हमें प्लान करके जाना होगा कि जो स्लो लर्नर है, जो थोड़ा ज्यादा है, जो उससे थोड़ा ज्यादा है ना, तो इसके लिए एक एक्टिविटी इस तरह से कराया गया कि जस्ट यू हैव टू मेक अ लेवल ऑफ योर टीचिंग एंड इमेजिन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिलो योर लेवल, हाउ मेनी आर अबव योर लेवल. वी हैव टू कंपनसेट ऑल देम टू handle them up to the level of the teaching whatever you decided to do in the class. तो सबको एक लेवल में लाने के लिए तो उस तरह की प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू क्लास. लेसन, क्वेश्चंस टू बी रेज्ड, वर्ड्स टू बी यूज्ड, क्या क्या शब्द हम यूज, हमारा वोकैबुलरी जो होना चाहिए वो भी एज पर द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए. अब हमने खूब अच्छा लैंग्वेज यूज कर लिया, ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए, स्टूडेंट्स को कुछ समझ में ही नहीं आया, तो दैट विल गो इन वैन. टाइम टू लिसन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कितना समय स्टूडेंट को हम सुनने के लिए देंगे और कितने समय हम उसको कुछ इस तरह की एक्टिविटी कराएंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे और उसके बीच हो. कंट्रोल एंड बुलीज. डिस्ट्रैक्टर तो हर एक क्लास में होता है. हाउ टू कंट्रोल सच थिंग, दैट शुड बी प्री डिसाइडेड. क्लास में जाने से पहले ही हमें ये सब प्लानिंग करके जाना होगा. पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू रिड्यूस द पेपर वर्क. Because if the students will involved in paper work, then I think all other
that points are listed above it cannot be fulfilled. तब तो गए लिख दिए, वो भी लिखने में बिजी है, हम भी लिखने में बिजी है। And increase accountability, transparency and fairness. जो कभी कभी शिकायत आती है कि वो टीचर उधर ही है, इधर नहीं है, उधर है, इधर नहीं, तो बी फेयर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। क्लास पर में जब भी हम जाते हैं तो कुछ एक्टिव प्लान्स होते हैं, कुछ पैसिव प्लान्स होते हैं। What sort of active plans can we go for a class and what sort of passive plans are there? तो inside class activities, this is the active plan. जब भी कोई एक्टिविटी हम क्लास के अंदर कर रहे हैं तो वो हमारा एक्टिव प्लान के अंदर है। एक्सपेरिमेंट्स, रोल प्ले, डिस्कशन, शो एंड टेल, कुछ दिखाया फिर पूछा, all these are the active plans. If we are going class work as out of the class, है ना, कभी कभी कुछ क्लास वर्क को हम लोग आउटसाइड, जैसे बच्चे को मैडम लोग करती हैं बाहर ले जाती हैं, पत्ते दिखाए, फूल दिखाया और भी कुछ दिखाया, that is also the class work, but this class work is out of the class. So such thing like field trip, visit to market, watch a cobbler mending, जिससे कि वो कुछ ना कुछ सीखेगा। Similarly पैसिव प्लान क्या क्या हो सकता है? ट्रेवल, फोटो गैलरी, अभी हम लोगों ने एग्जीबिशन लगाया था यहाँ हिस्ट्री के ऊपर कुछ, just to visit and get the knowledge from all such pictures and whatever so displayed there. Tasty food list, ये सब पैसिव प्लान है। जैसे टेस्टी फूड लिस्ट, हर एक बच्चा का टेस्टी फूड लिस्ट अलग अलग है, they have to prepare their list. What they would like to do in their spare time. अब ये क्लास वर्क एक्टिविटी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, जस्ट वी आर citing some questions and they are giving as per their own choice. सबकी चॉइस इसमें अलग होगी। Stories, painting, book covers by children, water management styles at school as well as home, all such things are the passive plan for the class work. यानी क्लास वर्क में हम ये भी करा सकते हैं, बट these are not as per our topics and that's why such works done in class are considered to be passive plan. तो क्लास वर्क में कुछ एक्टिव प्लान्स भी होने चाहिए और कुछ पैसिव भी। सिर्फ एक्टिव प्लान्स के साथ जाएंगे तो फिर कुछ बच्चे स्लीपिंग मोड में चले जाएंगे। तो कुछ पैसिव प्लान भी हमारा होना चाहिए कि बीच बीच में कुछ पैसिव प्लान के साथ हम क्लास एक्टिविटी को आगे बढ़ाएंगे। Teachers want to be better equipped and they want better tools for evaluation. If we want to go for the better evaluation, then we must be better equipped also. जब तक better equipped नहीं होंगे, सिर्फ chalk and duster होगा तो evaluation भी उसी बेस पर हम लोग कर सकते हैं। So we have to use some mind-sharpened technologies. यदि हम बेटर रिजल्ट चाहेंगे तो कुछ माइंड शैपर्ड टेक्नोलॉजी का यूज हमें करना होगा। एंड एज इन द प्रीवियस इयर्स वी आर यूजिंग द क्लास टीचर्स, नाउअडेज दीज आर नॉट इन फंक्शन बट दीज आर नीड ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो। एंड अभी ये सब जरूरत है कि वर्क हार्ड वर्सेस वर्क स्मार्ट, इसको समझना पड़ेगा। वो वर्क हार्ड कर रहे हैं बट नो रिजल्ट इज देयर, so it is better to go for the smart work to get the better result. Helping hands in classroom, हमें क्लासरूम में कौन कौन सी चीजें मदद कर सकती है? तो after completing a topic or chapter, a teacher can get this activity conducted. इस तरह की हम लोग करा सकते हैं। जैसे what are the learning gaps of students, अब ये find out करना है हम लोगों को ही। In which areas students are doing very well, तो कई सारे एक्टिविटीज या कई सारा एवेल्युएशन या टेस्ट हम लोग लेते हैं जिससे पता चल सकता है कि कहाँ पर लैकिंग है। एरियाज वेयर द टीचर शुड फोकस, तो ये यदि हम इन विच एरिया स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल इसको हमने समझ लिया या जान लिया, तो वी कैन गो फॉर द एरियाज वेयर स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग वेल, so we have to go for the revision. Overall feedback on how much the students have learned,
So all these we need to do after each and every topic. जब भी कोई टॉपिक खत्म हो तो उसके बाद ये चीज करेंगे तो क्या होगा? The teacher will get the real time report. कि presently क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये रिपोर्ट हमारे पास रहेगा. The teacher can conduct instant assessment of their classroom through this platform. और इसके लिए जैसे हम लोग ने ऑनलाइन में गूगल फॉर्म्स का यूज किया, कई सारे लोग कई तरह के क्विज वाले एप्स, Mentimeter, so many apps are there that can be used for the quick assessment of the students. और उसी को इसमें बताया गया है, how can go for the quick assessment using the technologies. Like teacher has to log on the platform, whatever platform we are using, first log on करेंगे, chapter select करेंगे, उसका assignment create करेंगे, date and time, date fix करेंगे, so that student has to submit in their stipulated time. ये नहीं कि एक assignment दिया और साल भर में पूरा कर दिया. This facility is also available in the Snap Homework that we are already using. उसमें भी हम लोग असाइनमेंट देकर के टाइम शेड्यूल फिक्स कर देंगे, उतने टाइम तक ही वो असाइनमेंट रहता है एंड स्टूडेंट्स कैन कंप्लीट एंड सबमिट द असाइनमेंट इन द सेम. और हम लोग खोल कर देख सकते हैं कि बच्चे ने किया या नहीं किया. ये स्नैप होमवर्क पर है फैसिलिटी, तो उसका यूज हम लोग कर सकते हैं. एंड एज सून एज एंड टाइम इज ओवर द टीचर विल इमीडिएटली गेट द फीडबैक. कितने बच्चों ने किया, कितने ने नहीं किया, किसने कैसा किया. इवन वी कैन गो फॉर प्रोवाइडिंग द ग्रेड्स एंड टिक मार्क, ऑल दीज थिंग्स इन द स्नैप होमवर्क. वहीं पर हम ग्रेड भी पुट करेंगे और बच्चे भी देख लेंगे कि हमें क्या ग्रेड मिला. सो सच असेसमेंट एंड असाइनमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. These are some experiential questions that we can give the students as an home assignment. Why does chutney make aloo tikki tasty? Let them to think. सबका अलग अलग रीजन होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन उसको दे देने हैं कि थोड़ा सोचे. अब घर में सोच सकता है बैठ करके. Why are cardamoms added to मिठाई? अब ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिसमें काफी इंटरेस्ट देगा. अरे इतने दिनों तक खा रहे हैं, कभी सोचे नहीं इसके बारे में, क्यों चटनी मिलाई जाती है. तो इस तरह के एक्सपीरियंशियल क्वेश्चन, इट मींस दैट दे हैव टू एक्सपीरियंस एंड देन आंसर. तो हर एक टॉपिक के आधार पर इस तरह के क्वेश्चन हम डिजाइन करके स्टूडेंट्स को दे सकते हैं. Such type of homeworks we have to include so that they have to experience and then answer. तो इसका हो जाएगा सर, हो जाएगा मजेदार क्वेश्चन. तो बताइए सर, why does chutney make? अनुभव बता रहे हैं. I said why does dal bread crossing by the evening? सर आपका नाम नहीं करेगा सर आपका. इसमें शाम के वक्त कि वायरस उसमें अटैक कर देगा, स्पॉइलिंग ऑफ फूड होने के कारण पपुन जैसा. लेकिन तो आप बताइएगा चटनी आप ही पीसती है. आप बताइए, हम तो बताइए. चटनी का नाम लेते सबसे पहले मुंह में तो आंसर बताइए, क्यों आ रहा पानी बताइए. साइंटिफिक बताइए, केमिस्ट्री वाले नहीं, खट्टा से जो है सैलिट्रिक ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है ज्यादा, इसलिए मुंह में पानी आता है. वो पानी आता है, इसका काम नहीं था यहाँ. वो तो चखे तो खाया जाता है. नाम से एडप इंग्रेडिएंट हो गया. जो टिक्की में है वो तो है, ऊपर से एडप एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट. स्पाइसेस में भी सब डिफरेंट टेस्ट में भी चटनी हैव डिफरेंट टेस्ट आल्सो, अलग अलग टेस्ट के होते हैं. अरे तो सर मिठाई में कार्डमम क्यों होता है, क्या खास क्या है? इलायची सर. हाँ क्यों फ्लेवर के लिए और कुछ नहीं. और उसका टेस्ट को इंक्रीज उसमें जरूर कुछ ऐसा होगा ना इलायची में. Motto is just to give such a question that they have to experience that. इसका प्रैक्टिकल हम
उसको प्रैक्टिकली वो करेगा, सोचेगा, फिर आंसर देगा। दीवार को आप लड्डू में डाल मार दीजिएगा। पूजा का 17 लाख। इसमें सर खरबूजा वाला तो क्या हो सकता है? खरबूजा वाला पीरियड जैसे बढ़ेगा टाइम का हिसाब बढ़ेगा, इस हिसाब से उसमें okay. So let us proceed so that it can be concluded in stipulated time. रॉकेट पोटैटो में बैठ ही होगा ना फंगस। Keeping eyes shut. अब कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जो आंख बंद करके स्टूडेंट्स को अनुभव करने के लिए है। This can be done in even in classroom also. इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे distinguish between different foods. Mashed potato, mashed banana. Let them to touch and answer. चखना नहीं, बंद करके टच करके फिर टेस्ट में भी हो सकता है, टच में भी हो सकता है। अब मैदा है, आटा है और भी इस तरह के लेट देम टू टच एंड फील। आइसक्रीम वाला कैसे करेंगे सर? Vanilla smell and the other strawberry smell are different. ऐसे उसके नजदीक जाएगा और समझ जाएगा स्ट्रॉबेरी वाला है या वनीला वाला। बच्चों को कराना experiment at home and learn. Experiment that they can do at home and they will learn a lot from such experiments. Very simple, like water will be polluted by salt, sugar, stones, dry leaves. Let them to add all such things and learn whether water gets polluted or not by adding all this. तो फिर इसमें वो आंसर ढूंढ लेगा कि किससे पॉल्यूट हो सकता है। वाटर पॉल्यूटेंट्स यूजुअली, अब ये पॉल्यूशन यदि समझ गया तो व्हाट दे फ्लोट ऑन वाटर, सिंक इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर या ऑल टाइप ऑफ हर तरह के पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। तो लेट देम डू एंड लर्न। नींबू पानी is whether it is polluted water, solution of water and design ingredients, mixture of water, sugar and salt. When they will do such experiments at home, they will automatically able to answer all such questions. इससे जो करने के बाद सीखेगा तो they are able. तो इस तरह के सिंपल एक्टिविटी भी हम उसको दे सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स that they will able to do at home and learn from. Yes. What will happen to the following if left? अब ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, घर के बच्चे देखेंगे। If it is left in a mug of water, a ball of clay. अब पानी ले लिया, सब डाल के बारी एक्सपीरियंस करेगा क्या होता है। So flower leaves, dry leaves, तो इससे पता चल जाएगा whether they are soluble or insoluble, they floats or sink। तो इस तरह की जो लर्निंग उसकी है वो अपने आप हो जाएगी। अब कितना भी हम डेफिनेशन लिखा दें, फ्लोटिंग ये है, सिंकिंग ये है, जब तक वो देखकर समझेगा नहीं तो। सोप क्या होगा? सोप ग्रेजुअली डिसॉल्व करेगा, डिसॉल्व होगा। Think of many more. It will depend on topics also. What topics we are dealing with. तो जिस टॉपिक्स को हम कर रहे हैं उसके हिसाब से इस तरह का एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट ड्राइंग बनाएंगे, डिजाइन करके बच्चों को देंगे। But for all these
we need motivation. बिना उसके ये सब होगा नहीं. So what is the difference between a teacher with high motivation and low motivation? Let us calculate on their own. These are the features of a motivated teacher, and these are the features of demotivated. तो इस पैमाने पर हम अपने आप को आंकें और उस हिसाब से मोटिवेट हो जाएं, ताकि अगला क्लास जो हमारा होगा बिल्कुल मोटिवेशन से भरा हुआ होगा. I think very common points are there. All are. So to the world, we may be just a teacher, but for our students, we are star. So we should behave like a star, do like a star, so that we may become the idol for our students. And it needs the motivation. If we will remain motivated, we will get the recognition. We will achieve the things as per our need or goal. We will get several responsibility, and we will observe as the responsible person. Job satisfaction भी मिलेगा, and finally there will be a growth, not only in students but in ourselves also. Thank you, sir. बहुत अच्छा. Yes, so have fun. Lead by example, and thank you. Thanks, sir. So nice, sir. Sir, we are not getting feedback. We are not getting feedback. अरे कोई बात नहीं है. So nice, sir. Sir, we are not getting feedback. We are not getting feedback. अरे कोई बात नहीं है.